Hello my dear audience, how are you all? I hope you must be devoting your quality time in your studies, and that is very important in this crucial time. Your periodic assessment are also approaching, so it's better to spend a good time in your studies. Okay, so you know that we are on with our second chapter of economics, and that is sectors of Indian economy. In the previous video, we have learnt about various sectors of economy on the basis of nature of activity, and these were primary, secondary and tertiary sectors, and also we have taken into account how the GDP is counted or is calculated by keeping in mind the contribution of all the three sectors. Okay, so now we are here with the next topic of this chapter. This is historical change in the sectors. How there is change in the dominance of the sectors in the years that have been passed by. जैसे जैसे years cross होते जा रहे हैं या historical period में, यानी पहले के time पर कौन सा sector dominate कर रहा था और अब कौन सा sector dominate कर रहा है, that we are going to study in this topic. As we all know that our country is an agricultural country, so and for every civilization, when there is the time for the development of the civilization, the primary sector predominates. हमेशा जब development हो रहा होता है किसी भी country का, तो primary sector dominate करता है. This is true for every country. कोई आज के time पे those who are developed countries at some point of time their primary sector has dominated their economy. So this is a general trend. ठीक है? It has been noted from the history of many now developed countries that at the initial stages of development, primary sector was the most important sector of the economy. ठीक है? So as the methods of farming changed and agricultural sector began to prosper, what happened? The people are now growing more and more food, and therefore they were not worried about their food demands, and therefore they started investing their time and money in other activities. समझ में आ रहा है? बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें आने के बाद या जैसे जैसे methods of farming gets improved, तो people were growing more food, and therefore they have now more time to look after other activities. So people started doing other activities like they were involved in crafts activity or trading. दूसरी चीज़ें dominate करने लगी. ठीक है? तो now buying and selling activities also increased many times. Besides there were also many transporters, administrators, army. बहुत सारी चीज़ें होने लगी society में as the stages of development are reached. तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा था दूसरी चीज़ें भी प्रीडोमिनेट करने लगी थी, बट स्टिल क्या था? द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वॉज ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स. द मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी वॉज ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स, एंड दैट मीन्स दैट प्राइमरी सेक्टर वॉज डोमिनेटिंग एट दैट टाइम. However, at this stage, most of the goods produced were natural from the primary sector, and therefore many, or we can say most of the people are employed in the primary sector. You are getting my point? कि फार्मिंग के मेथड्स इम्प्रूव हो रहे थे, लोग दूसरी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर रहे थे, बट स्टिल जो मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन था दैट कम्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, एंड ऑल्सो द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वॉज मोस्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर. क्लियर? नाउ एज द ईयर्स पास्ड बाय, जैसे जैसे ईयर्स पास होते गए, व्हाट हैपेंड? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज केम. यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आने लगी. पीपल स्टार्टेड यूजिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स विच वर फैक्ट्री मेड. लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री मेड चीज़ें जो कि चीपर मिलती थी वो यूज़ करने लगे. तो क्या हो गया? धीरे धीरे ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का ट्रेंड चलने लगा, या प्रोडक्शन जो था वो सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा होने लगा. एंड दैट वी आर टॉकिंग ऑफ नॉट लेस देन 100 ईयर्स. जो लॉन्ग टाइम जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बहुत साल निकलने के बाद, मोर देन 100 ईयर्स. ठीक है? स्पेशली बिकॉज न्यू मैथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड और फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग. तो पीपल जो कि अभी तक फार्म पे वर्क करते थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे, वो किस में करने लगे? वो क्या चीज़ें करने लगे? अब दे स्टार्टेड वर्किंग इन industries that we have studied in our history chapter 5.
एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसे इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और पीपल वर नाउ गेटिंग एंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हमारा कौन सा सेक्टर है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। सो नाउ people began to use more goods that were produced in factories at cheap rates. Secondary sector gradually became the most important sector in the economy. तो अब हमने क्या देखा? That the dominance of the sectors has shifted from primary sector to secondary sector. प्राइमरी सेक्टर में क्या हो रहा था? लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करने लगे थे, लेकिन वो चीज़ें फिर भी क्या थी? बाइंग एंड सेलिंग हो रही थी, क्राफ्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी, बट दे वर ऑल बेस्ड ऑन नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। So therefore, the primary sector was at the dominant part. But now, because manufacturing industries came up and they started expanding, secondary sector gained the importance. The importance of contribution in the economy shifted from the primary sector to the secondary sector. Now, in the past 100 years, अब क्या हो रहा है? Again, in the past 100 years, what is happening? There has been again a shift from the secondary sector to the tertiary sector. People have started using more and more services. बहुत सारी चीज़ें अब हमारी लाइफ में हैं जो कि सर्विस सेक्टर का पार्ट हैं, और therefore जो शिफ्ट है वो किस तरफ हो गया? फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर टुवर्ड्स द टर्शरी सेक्टर, ठीक है। इन द पास्ट 100 years there has been a further shift from secondary sector to tertiary sector, and this is especially in case of डेवलप्ड कंट्रीज़। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये ट्रेंड ज़्यादा देखने में आता है, क्योंकि लाइफस्टाइल हैज़ बिकम मॉडर्न, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ इंक्रीज, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसे दूसरे सर्विसेज पर खर्च कर सकते हैं, मतलब लग्जरीज़ पर खर्च कर सकते हैं। दे आर नॉट नो मोर बाउंड टू फुलफिल देयर नेसेसिटीज़, दे कैन नाउ अफोर्ड एंड दे, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी इतनी इम्प्रूव हो चुकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो इसकी वजह से बहुत सारी सर्विसेज पीपल आर स्टार्टेड यूजिंग, लाइक वी हैव नाउ एडवांस्ड इंटरनेट सर्विसेज, एडवांस्ड बैंकिंग सर्विसेज, एडवांस्ड जो स्टॉक मार्केट्स हैं, दीज आर ऑल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज आप काउंट करो, दे हैव टेकन अ बूम इन द लास्ट 100 years। तो अब क्या हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, खास करके जो शिफ्ट है वो कहाँ हो गया? फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर टू टर्शरी सेक्टर। This has become the most important sector in terms of contribution to GDP in the last 100 years. आ रहा है समझ में? पिछले कुछ सालों में ये बहुत ज़्यादा हो गया है। Most of the working people are also employed in the service sector. This is the general pattern observed in developed countries. अब जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी टर्शरी सेक्टर, ये हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कह रहे हैं, दैट द टर्शरी सेक्टर इज़ नॉट जनरेटिंग मच एम्प्लॉयमेंट एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। अब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है टर्शरी सेक्टर पहले के सालों की अपेक्षा। सो दिस इज़ वॉट वी हैव सीन कि पहले जो इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर प्रीडोमिनेटेड, देन आफ्टर सम ईयर्स और वी कैन से आफ्टर 100 years or so secondary sector dominated, and then again in the last 100 years there has been a shift from the secondary sector to the tertiary sector. In terms of importance, we are talking about in terms of importance, or we can say in terms of contribution towards the GDP, ठीक है। तो ये जो है ये दिस इज़ अबाउट द थिंग कि कैसे हिस्टोरिकल चेंजेस आते जा रहे हैं एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर चेंजिंग, ठीक है। सो बेसिकली वी विल discuss it with the help of this graph. See this graph here. In this graph, GDP by primary, secondary and tertiary sectors are given. This blue color represents primary sector, red color is for secondary sector, and this green color is for tertiary sector. And it shows the जो data of 2 years 1973-74 and 2013-14. This shows the data of these 2 years. ये एक कंपैरेटिव ग्राफ है जिसमें कि हम 73-74 का डेटा देख सकते हैं कि वो जीडीपी के टर्म्स में क्या था, एंड दिस इज़ अबाउट दिस इज़ द थिंग्स सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया। अभी तक जो हम बात कर रहे थे द हिस्टोरिकल चेंज, दैट वाज अ जनरल टॉपिक, दैट वाज कंसिडरिंग मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली द डेवलप्ड कंट्रीज। बट ये जो हम जीडीपी का ग्राफ देख रहे हैं, दिस इज़ कंसर्न विद द sectors of economy in India, their contribution in the economy in India. तो 73-74 और 13-14 का डिस्कस कर रहे हैं हम।
you can see that the total GDP in the year 73-74 is around 6 lakhs or we can say 7 lakhs, around 7 lakhs. ठीक है, सी और यहाँ पर आप देख सकते हो GDP जो है वो कितना है इन द ईयर 13-14 इट इज़ अराउंड 56 और 57 लैक्स. आ रहा है समझ में? 56 लैक्स हम देख लेते हैं. दिस इज़ 7 लैक्स एंड दिस इज़ 56 लैक्स. ठीक है, अब सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? 73-74 में वी कैन सी दैट प्राइमरी सेक्टर इज डोमिनेटिंग. द मेजर पार्ट ऑफ द GDP कम्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर. And in 2013-14 primary sector contributes at the third major contributor, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा contribution है वो कहाँ से आ रहा है? From the tertiary sector और from the service sector. फिर उसके बाद secondary sector dominate कर रहा है और last one is primary sector in terms of contribution towards GDP. जो 56 lakhs का GDP है उसमें around 8 lakhs जो contribution है वो है किसका? प्राइमरी सेक्टर का. फिर 8 लाख से सपोज 9 से लेके 21 लैक्स, तो वी कैन से 11 लैक्स के अराउंड कंट्रीब्यूशन है. 21 लैक्स के करीब है ये, 21 या 22 लैक्स. तो ये 9 लाख से स्टार्ट होके 22 लैक्स तक किसका कंट्रीब्यूशन है? सेकेंडरी सेक्टर का. वेयर एज इन 73-74 सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, अराउंड 1 लाख ओनली. यहाँ पर आप 4 लाख प्राइमरी सेक्टर का देख लो, यहाँ पर है अराउंड 8 लैक्स, यहाँ 4 लैक्स, यहाँ 8 लैक्स. दोनों में सब्सटेंशियल डेवलपमेंट हुआ है, सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट है प्राइमरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन में भी. लेकिन यहाँ पर ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है और यहाँ पर ये लीस्ट कंट्रीब्यूटर है. आ रहा है समझ में? दोनों में डेवलपमेंट हुआ है. यहाँ पर क्योंकि GDP ही बहुत कम है, यहाँ पर तो केवल 7 लाख GDP आ रहा है, यहाँ पर 56 लाख GDP आ रहा है. और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का इज़ अराउंड 4 लाख 7 लाख में से, और यहाँ पर 56 लाख में से ओनली 8 लाख इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. देन वी टॉक अबाउट दिस सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में यू कैन ईजिली सी जो सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूशन था 73-74 में वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, जो कि है अराउंड 1 लाख. Whereas here in 2013-14 this is the second major contributor and it contributes to around 13 lakhs. ठीक है, somewhat around you can say 9 लाख से स्टार्ट होके 21 lakhs तक जा रहा है, तो you can say about 12 lakhs जो है ये इसका contribution है सेकेंडरी सेक्टर का. Then we come to the third sector, tertiary sector. Tertiary sector was the second largest contributor in 73-74 and here it is the largest contributor. You can easily see कि ये around इसको मान लो आप 23 लाख से स्टार्ट होकर 56 लाख तक इसका contribution है. ठीक है, तो this shows the rise in the importance of tertiary sector in between these years. In a span of around 40 years, around 40 years के span में जो tertiary sector था उसका contribution has increased substantially. Primary sector is also increased substantially. Secondary sector is also increased substantially. But the contribution of primary sector is now the least one, while in 73-74 प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था. ठीक है, यहाँ पर टर्शरी सेक्टर का सेकेंड नंबर पे था, यहाँ लार्जेस्ट है, यहाँ सेकेंडरी सेक्टर लीस्ट था और यहाँ ये सेकेंड नंबर पर है. सो दिस वॉज अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ. Graph 1 shows the production of goods and services in the 3 sectors. This is shown for 2 years. ठीक है, ये 2 years के लिए शो हो रहा है. 1973-74 and 23-14. We have used the data for these 2 years because the data are comparable and authentic. हमने पढ़ा था GDP में कौन ये डेटा प्रोवाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. Now another very interesting topic that we have come to is rising importance of tertiary sector. अब हम ये देख रहे हैं कि tertiary sector तो बहुत improve कर गया, उसका substantial improvement हुआ है. तो उसके reasons क्या थे? Over the last 40 years
ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एज अ रिजल्ट टर्शियरी सेक्टर एमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को उसने रिप्लेस कर दिया। तो उसके कुछ रीजंस तो रहे होंगे। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रीज़न इज़ दैट इंडिया में सर्विसेज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है इन टर्म्स ऑफ द बेसिक सर्विसेज। ठीक है, पहले जो चीज़ें लोग अफोर्ड नहीं करते थे या जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी वो अब रिड्यूस होने लगी हैं, मतलब वो जो है अब लोग उसको बेसिक सर्विसेज में काउंट करते हैं। ठीक है, लाइक द सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, municipal corporations, defense, transport, banks, insurance companies, etc. These are all required essentially by the people. These are now termed as basic services. Basic services समझ रहे हो कि अब लोगों को ये इनके बिना सर्वाइव करना मुश्किल है, बहुत essential services हो गए। And in a developing country, it is very very important that government take the responsibility for the provision of these services. तो गवर्नमेंट जो है सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, दैट मीन्स टर्शियरी सेक्टर ग्रो कर रहा है एंड गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग ऑल दी सर्विसेज टू सिटीजन्स। हमारे कंट्री के सिटीजन्स को ये सभी सर्विसेज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड इज़ कि सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर भी तो डेवलप हो रहा है ना। यू हैव सीन कि सभी जो है वो काफ़ी डेवलप हुए हैं। जो प्राइमरी सेक्टर पहले 4 लाख का कंट्रीब्यूशन दे रहा था वो अब 8 लाख का दे रहा है। सेकेंडरी सेक्टर जो पहले केवल 1 लाख का दे रहा था वो अब 11 लाख का दे रहा है। तो दिस शोज़ कि 11 लाख, वो जो ग्राफ था वो रुपीज़ इन क्रोर्स है। ठीक है, उसको केवल 11 लाख मत समझना, दीज आर रुपीज़ इन क्रोर्स, मतलब 11 लाख क्रोर्स। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री जब होगा तो नेचुरली डेवलपमेंट ऑफ टर्शियरी सेक्टर होगा, बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट ऑल दीज 3 आर इंटरडिपेंडेंट। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर 2 सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं तो इट इज़ बाउंड टू हैपन कि थर्ड सेक्टर ऑब्वियसली ग्रो करेगा। जितने इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी उतनी सर्विसेज भी तो रिक्वायर्ड होंगी उनको। जितनी प्राइमरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, इतनी सारी क्रॉप्स हो रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो नेचुरली उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उनको फिनेंस करने के लिए हर चीज़, स्टोरेज फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कम्युनिकेशन सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी। तो जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करता है तो टर्शियरी सेक्टर ग्रोज ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये दूसरा रीज़न हो गया। नाउ द थर्ड वन इज़ कि जो लोगों की इनकम बढ़ रही है, जिसकी लोगों की इनकम बढ़ने की वजह से क्या बढ़ रहा है, लोगों की प्रायोरिटीज़ बढ़ रही हैं। ठीक है, लोग जो हैं अब उनके पास पैसा है खर्च करने के लिए, सो नाउ दे कैन अफोर्ड टू टूर एनी प्लेस, they want to go for tourism, they want to visit new places, they want to eat out, they want more expensive gadgets, more expensive clothes। तो शॉपिंग का जो चार्म है वो बढ़ रहा है, मॉल्स की कल्चर आता जा रहा है, तो पीपल आर गोइंग टू मॉल्स एंड बाइंग दीज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मोर एंड मोर। तो जैसे जैसे पैसा आता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रो करता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रो करता है तो नेचुरली लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा अपने ऐशो आराम पर, अपनी लग्जरीज पर खर्च करेंगे, एंड दिस विल गिव एन इंक्रीज इन द टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। यू आर गेटिंग इट? इनकम लेवल राइज हो रहा है। सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज like eating out, tourism, shopping. Now they want to go to private hospitals, private schools, professional training जो है वो institutes, इनकी भी बहुत डिमांड है। बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। So all these things are developing and therefore tertiary sector is developing. हाँ, ये बात ज़रूर है that these services are developing in big cities rather than in small cities or in rural areas. ये जो malls का कल्चर है और सब चीज़ें हैं, ये सभी बड़े शहरों में ज़्यादा बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सिटीज़। Now, fourth reason is this, that over the past decade, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. ये एक बहुत important reason है कि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ 10-20 सालों में ये हुआ है कि कुछ सर्विसेज बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गई हैं, like those based on information and technology that you can see yourself. आप लोगों के टाइम में जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रिवॉल्यूशन है वो
आ चुका था और ये अब धीरे धीरे ग्रो ही करता जा रहा है, ठीक है। पिछले कुछ सालों से ही ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और इससे रिलेटेड सर्विसेज ग्रो कर रही है। लाइक जब इंटरनेट है तो बहुत सारी ऐप्स हैं, ऐप्स को डेवलप किया जाता है, सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, एवरीथिंग डिमांड्स दीज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो इतना ज़्यादा इसका स्प्रेड हो चुका है दैट इट हैज़ गिवन अ रैपिड राइज इन द टर्शरी सेक्टर, ठीक है। बिकम इम्पॉर्टेंट, दीज हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। अब बहुत एसेंशियल हो चुकी है ना। आप देखते हो कि आपकी लाइफ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसके बिना हम एक दिन भी हम गुजारना मुश्किल होता है ना। बिना टीवी के, बिना मोबाइल के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। हम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कार्टून देखते हो या ये देखते हो, गेम्स खेलते हो, ये तो है ही सही, बट इसके अलावा सोशल मीडिया और इवन फॉर योर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यू नीड टू रिलाई ऑन दीज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो इसकी वजह से ये बहुत रैपिड राइज दिया है इसने टर्शरी सेक्टर को, ठीक है। तो दीज आर द 4 रीजन्स वाई द टर्शरी सेक्टर इज़ राइजिंग। क्या क्या रीजंस पढ़े हमने? पहला कि बहुत सारी सर्विसेज अब बेसिक सर्विसेज के रूप में काउंट होने लगी हैं और वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है। सेकेंड रीज़न दैट इफ़ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर डेवलपिंग, द टर्शरी सेक्टर इज़ बाउंड टू डेवलप और बाउंड टू राइज इन इम्पोर्टेंस। The third thing that as the income level of the people is growing, so their demands, their requirements are also growing. They require more and more services, and therefore they are spending money on their eating habits, जो उनकी restaurants में और बाहर जो देखते हो आप इतने सारी वो है एजेंसीज़ हैं, लाइक जोमेटो है, बहुत सारी चीज़ें ना ये जो आजकल लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। अभी तो रुका हुआ है बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से, बट स्टिल लोग अपने ऐशो आराम पे जो आप देखते हो डिजिटल शॉपिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सर्विसेज इतनी सारी आ रही हैं, ऑल दीज आर बिकॉज पीपल आर नाउ हैविंग मनी टू स्पेंड ऑन देयर लग्जरीज रादर देन नीड्स। अभी तक तो लोग अपनी ज़रूरतें ही पूरी करते थे, अब लोग अपनी चाहतें, अपनी इच्छाएं, शौक सब पूरे कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इससे रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज बहुत राइज पर हैं आजकल इन पिछले कुछ डेकेड्स से, और इसीलिए टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, ठीक है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हाउएवर टर्शरी सेक्टर इज़ राइजिंग बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन टर्शरी सेक्टर, एंड इसलिए therefore we cannot say that tertiary sector is rising as a whole, या उसमें बहुत सारी डिस्पैरिटी है, मतलब अनइक्वल डेवलपमेंट है। पूरा टर्शरी सेक्टर एक साथ डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि वी हैव स्टडीड द टर्शरी सेक्टर एट वन एंड इट इंक्लूड्स हाईली स्किल्ड पर्सन्स, हाईली एजुकेटेड पर्सन्स हु आर employed in big companies and they are earning much of the money, but at the other end there are service providers who are earning very meager amount of money, बहुत ही कम amount of money जो earn कर रहे हैं, like the vegetable vendors, the small shopkeepers, cobblers, repair persons, plumbers, carpenters, ये सभी तो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर, दे ऑल्सो बिलोंग टू टर्शरी सेक्टर। तो इतने सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो सर्विस मैन हैं, वो बहुत कम अर्न कर पा रहे हैं, दे आर मीगरली अर्निंग देयर लाइवलीहुड, और समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू अर्न इवन देयर लाइवलीहुड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। जितनी उनको ज़रूरत है उतना वो अर्न भी नहीं कर पाते हैं कई बार। You have seen people who are looking for some work the whole day and they couldn't get any work for many days in a year. बहुत सारे दिन ऐसे निकल जाते हैं जब उनको काम ही नहीं मिलता है। So that means that not all the service sector is growing equally well. ठीक है, service sector in India employs many different kinds of people. At one end there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers, जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई या बड़ी कंपनीज हो गई दूसरी तरह की, लाइक कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों की जगह है, तो दे आर अर्निंग very good amount of money. But at the other end there are very large number of workers engaged in services such as small shopkeepers, repair persons, transport persons, etc. These people barely manage to earn a living for themselves, and yet they perform these services because they have no alternative. उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, they cannot choose to do some other work. So therefore they are forced to do such types of works, and or we can say that they are literally
bound to do these types of work because they have very less opportunities. They can't go for other alternatives to earn more money. ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, कैसे गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, सो दैट दे कैन गेट अदर अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो टू अर्न मनी. But basically the thing is that tertiary sector is not growing equally well. Some service class are going really well, but some are still at the we can say unadvantaged and unprivileged. जो underprivileged लोग हैं उनके बीच उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है हमारी कंट्री में. ठीक है, so here we have completed this topic. In this class we have studied about the historical changes in the sectors and the rising importance of tertiary sector. ये दोनों टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं. नेक्स्ट आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, लाइक वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, और जो बाकी के 2 ग्राफ्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर नाउ, हैव अ गुड डे.